بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ کب تک ہم مدرسہ، کالج، یونیورسٹی میں پڑھے اپنی اور دوسروں کی زندگی ضائع کرتے رہیں گے؟ کاش کہ یہ طلباء جانے سے پہلے تحریر پڑھ لیں اور عمل کر لیں۔ آج صبح سے ہی گھر پر ایک خاص قسم کی ہلچل تھی۔ کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بازار میں سامان لینے جا رہا ہے۔ ابا آج صبح سویرے بغیر نہائے دھوئے کام پر نکل گئے۔ بڑی بہن کی پھرتی قابل دید تھی۔ وہ امی کے ساتھ مل کر ٹفن تیار کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن ادھر سے ادھر کودتی جا رہی تھی کہ بھیا آج مدرسے کو جائیں گے۔ اتنے میں چھوٹے بھائی کی آواز آئی، اماں میں بھیا کے لیے ناشتہ اور ضروری چیزیں لے آتا ہوں۔ غرض یہ کہ گھر بھر میں عید کا سماں تھا اور ایک میں تھا جو گال پھلائے، شکنے چڑھائے زمانے بھر سے بیزار بیٹھے تھے۔ دل میں تو بار بار آ رہا تھا کہ آج تو جی لگا کر کہہ دوں، مجھے مدرسہ نہیں جانا۔ تم لوگ یہاں مزے کرتے ہو اور میں میلوں دور وہاں جھک ماری کرتا ہوں۔ بہت ہو گیا اب کہ میں کسی بھی حال میں مدرسہ نہیں جاؤں گا۔ دل ہی دل میں طرح طرح کے خیالات آتے اور جاتے رہے۔ دماغ وسوسوں کا جال بنتا اور پھر خود بخود ٹوٹ جاتا۔ قسم ہا قسم کے ڈائیلاگز ذہن میں کل بلاتے اور پھر بلی کی گردن میں گھنٹی باندھنے کا موقع آتا تو اپنی موت آپ مر جاتے۔ اسی سوچ بچار میں کوچ کا وقت ہو گیا۔ اوپرے دل کے ساتھ 2 لقمے مارے اور اٹھ گیا۔ بیچاری امی پکارتی رہی کہ بیٹا سفر ہے کچھ تو کھا لو، مگر یہاں گھر چھوڑنے کے غم کے ساتھ غصہ اس پر بھی تھا کہ ابا نے صرف 2000 روپے کیوں دیے، لہٰذا اس غصے کا اظہار ضروری تھا۔ ابا یہ سارا ماجرا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اصل درد کہاں ہے۔ بغیر کھائے چپ چاپ اٹھے اور بیڈ روم سے اپنا کرتا اٹھا لائے اور جیب میں جتنے پیسے تھے ریزکاری سمیت سب نکال کر دے دیے، یہاں تک کہ آخر میں 1 روپیہ کا سکہ نکل آیا، وہ بھی دے دیا۔ خدا جانے ذہن پر کس قسم کا بھوت سوار تھا کہ کچھ سوچے بنا وہ 1 روپیہ بھی لے لیا۔ کنکھیوں سے دیکھا کہ گھر کے سبھی افراد کو میری یہ حرکت نہایت ناگوار گزری، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں، تو میں نے بھی اس خیال کو ایسے ہی جھٹک دیا جیسے بے وقت آئی ہوئی مکھی اڑائی جاتی ہے۔ خیر ابا تو 1 لقمہ بھی نہ کھا سکے۔ امی نے بھی زبردستی 2 لقمے ٹھونسے اور اٹھ گئیں۔ سب لوگ ہاتھ دھو کر مجھ کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے، جسے پچھلے مہینے فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، بیگ اٹھایا۔ امی نے مسکراتے ہوئے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور ماتھا چوم کر بلائیں لیں۔ ابو نے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ نصیحتیں کی، جس کا آخری جملہ یہ تھا، بیٹا محنت سے پڑھنا، وقت ضائع مت کرنا، ہم بڑی مشقتوں سے تمہیں پڑھا رہے ہیں۔ نہ جانے اس جملے میں کیا کسک تھی کہ بے اختیار آنکھیں اوپر اٹھ گئیں اور دل کانپ کر رہ گیا۔ ابو کا چہرہ گو سپاٹ اور ہر قسم کے تاثرات سے خالی تھا، تاہم آنکھوں میں چھپا درد جھلک رہا تھا، بلکہ چھلکنے کو تھا۔ ہونٹوں پہ زخمی تبسم تھا اور آنکھوں میں درد کے سائے لہرا رہے تھے۔ امی تو ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی روتی تھی، قبل اس کے کہ مجھ سنگ دل کی آنکھیں اپنا کام کرتی۔ دھیمی آواز سے سلام کر کے تیزی سے زینے اتر گیا۔ آج پہلی مرتبہ چھوٹا بھائی خاموش تھا۔ میں نے چھیڑا تو اسے بھی آج ہی ابلنا تھا۔ کہنے لگا، بس بھیا کیا بتائیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کے جاتے ہی چھوٹی بہن پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ امی بیڈ روم میں جا کر بستر پر اوندھے منہ گر جاتی ہیں۔ بڑی بہن بالکنی میں کھڑے کپڑوں کے بجائے آنسو سکھا رہی ہوتی ہے۔ ابو ان سب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیوں ہمیشہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اکثر گھر میں 8 دن تک صرف کھچڑی پکتی ہے، جسے سب گھر والے اچار یا چٹنی کے ساتھ ملا کر کھا لیتے ہیں۔ سب سے برا حال گھر پر امی کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات 3 دن تک کچھ کھاتی نہیں ہے۔ ایک چپ سی لگ جاتی ہے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور ہم لوگ امی کے منہ سے ایک جملہ سننے کو ترس جاتے ہیں۔ رات کو چپ کے میں دیکھتا ہوں امی کروٹیں بدلتی رہتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک مرتبہ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا کہ امی جان مسلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی ہیں۔ میں قریب ہی تھا، ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا سن پایا کہ اے اللہ میرا معاذ۔ صبح جب میں نے ابو کو قصہ سنایا تو ابو کہنے لگے، بیٹا
तुम्हारी अम्मी तो 20वें मर्तबा रात को अचानक उठकर बैठ जाती है। मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ तो रोती हुई बड़ी बेबसी से कहती है, बस यूं ही अचानक ख्याल आ गया कि मेरे मासूम बच्चे ने खाया भी होगा या नहीं, उसे कोई सताता तो नहीं होगा। वो अगर बीमार हो गया तो मेरे लगते जिगर को कौन देखेगा। इसी किस्म के जुमले कह कह कर खुद भी रोती और मुझे भी रुलाती है। और जिस रात ये किस्सा पेश आता है, फिर वो रात मेरी और तुम्हारी अम्मी की मुसल्ले पर गुजर जाती है। छोटा भाई अपनी रो में ये सब सुनाता जा रहा था और मैं हैरत व तअज्जुब के मारे बुत बना अपनी जगह खड़ा था। छोटे भाई ने कहा, भैया जिस दिन हम बहन भाई रात को खा पी कर फारिग बैठते हैं तो सबसे पहले ज्यादा तुम्हारी बातें करते हैं और अम्मी खुलकर तुम्हारे बचपन के किस्से सुनाती हैं। और हर मर्तबा अब्बू आखिर में उठते हुए ये कहते हैं, तुम लोग देखना एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आलम बनेगा। मुझ पर यक्के बाद दीगरे हैरतों के पहाड़ टूटे जा रहे थे और रफ्ता रफ्ता हैरत की जगह निदामत शर्मिंदगी ले रही थी। बिल्डिंग के नीचे खड़े खड़े अभी ये बातें चल ही रही थी कि मेरा जिगरी दोस्त खालिद आदम का और अपने तकल्लुफाना अंदाज में कहने लगा, बस क्या यार इतनी जल्दी चल दिए, अभी तो आए थे। मैं मुस्कुरा के टाल गया तो उसे कुछ याद आ गया। कहने लगा, यार आज सुबह गज़ब हो गया। तुम्हारे अबू सुबह सवेरे हाजी जुनेद के सामने सर झुकाए खड़े थे और हाजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सुबह सुबह भिखारी कर्ज मांगने आ जाता है, हैसियत नहीं है तो अपने बेटे को नौकरी पे लगा, क्यों हराम का मदरसे में डाल रखा है। और इससे पहले वाले साल भी तो बच्चे के बहाने कर्ज ले गया था, वो तो अभी तक नहीं दिए। और पता नहीं हाजी क्या क्या बकता रहा। आखिर में कॉलर पकड़ के उसने अब्बा को एक थप्पड़ मार दिया और जेब से 2000 के नोट निकाल कर ये कहते हुए मुंह पर मारे कि ले भिखारी, आइंदा हफ्ते किसी भी हाल में मुझे सब पैसे वापस चाहिए। अब्बू नीचे गिरी हुई नोट उठाकर सर झुकाए आगे बढ़ गए। सुबह का वक्त था, सन्नाटा था। ये मंजर मेरे सिवा किसी ने नहीं देखा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैंने लपक कर पूछा, चचा जान, आप तो मोहल्ले के शरीफ और इज्जतदार आदमी हैं, आखिर इस कमीने हरामी बुड्ढे से इतना दबने की क्या ज़रूरत है? ये सब जिल्लतें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हम दोस्त लोग मिलकर इस बुड्ढे को ठिकाने लगा दें? अब्बा जी की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, नहीं जी, अगर मैं 2000 लेकर नहीं गया तो मेरा बेटा मदरसे में नहीं जा पाएगा और मैं उसको पढ़ा कर जन्नत कमाना चाहता हूँ। दायमी जन्नत के लिए आरजी जिल्लत बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये किस्सा सुनकर मेरा हाल ये था कि काटो तो बदन में खून नहीं। मेरी नज़रों के सामने घर से निकलते वक्त पैसों वाला किस्सा घूम गया। मैं अपने आप की नज़र में जलील हो गया था। छोटा भाई मुझे देख रहा था मगर मैं उससे नज़र मिलाने के काबिल न था। मुझे ज़मीन अपने पैरों तले खिसकती हुई महसूस हुई। खालिद तो ये हादसा सुनाकर चला गया और छोटा भाई बैग उठाकर चुपचाप आगे को चल दिया। मैं बोझल कदमों के साथ उसके पीछे पीछे हो लिया। मस्जिद के करीब ही नाजरे के बूढ़े उस्ताद मिल गए। उन्होंने बड़ी शफकत के साथ सर पर हाथ फेरा, दुआएं दी और कहा कि बेटा मेहनत से पढ़ना, बड़ी मुद्दत के बाद इस बस्ती से कोई आलम बनेगा। तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तुम हमारी पूंजी हो, अपने आप को ज़ाया मत कर देना। मैं उन्हें क्या जवाब देता कि अब तक की जिंदगी तो ज़ाया ही किए जा रहा था। बस्ती से निकलते वक्त अचानक किसी ने आवाज़ दी, रुक जाओ बेटा। मुड़कर देखा तो बस्ती के बूढ़े बाबा जी थे। बड़ी मुश्किल से चौराहे पे बिछी चारपाई से उठे, लकड़ी के सहारे सहारे टेक लगाते हुए आए। करीब आकर मोहब्बत पाश नज़रों से देखा और आप दीदा होकर कहने लगे, तुम मदरसा जाते हो तो दिल बड़ा खुश होता है। बेटा हम गुनाहगारों के लिए दुआ करना। अपनी जिंदगी में तो कुछ ना कर पाए, अब तुम जैसे बच्चों के सहारे जी रहे हैं कि जन्नत में तुम जाओगे तो तुम्हारा दामन पकड़कर पीछे पीछे हो लेंगे। देखियो इस दिन अपने गुनाहगार बाबा जी को भूल मत जाना। बंदा सर झुकाए शर्मिंदगी के साथ उनकी गुजारिशात सुनता रहा और अपनी हालत पर अफसोस करता रहा। इसके बाद हम आगे बढ़े, स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने को थी। मैं जल्दी से लपक कर चढ़ा। भाई ने बाहर से बैग फेंका और ट्रेन फर्राटे भरती हुई तेजी से दौड़ने लगी। मैं सामान वहीं दरवाजे पर छोड़कर खड़ा हो गया। महबूब वतन की गलियां निगाहों के सामने से गुजर रही थीं। कभी अब्बू जी का गमज़दा चेहरा सामने आ जाता, कभी रोती हुई अम्मी याद आ जाती, कभी छोटी बहन का सरापा निगाहों के सामने घूम जाता, कभी छोटा भाई हाथ लहराता नजर आता, कभी शफकत फरमाते हुए मकतब के उस्ताद जी दिखाई देते और कभी पापा जी की लचाचत भरी दरख्वास्त जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देती।
फिर पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ कि मैं दरवाजे पे खड़े खड़े फूट फूट कर इतना रोया कि शायद वो बायद ही कभी जिंदगी में इतना रोया हूँगा। ये एहसास से ज़िया के आंसू थे जो अब तक की ज़ाया शुदा जिंदगी पर बह रहे थे। ये अपनों के अरमानों का खून था जो आंसुओं की शक्ल में जारी था। प्यारे तालिब इल्म भाइयों, बेशक मज़कूरा बाला सतरें तखरीलाती हैं, लेकिन अगर घर से निकलते वक्त इबरत की आंखें खुली रखी जाएं, अपने गिरदो पेश पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये सारे मनाजिर खुली आंखों देखे जा सकते हैं। जब तुम घर से निकलो तो अब्बा की जख्मी मुस्कुराहट को गौर से देखा करो। तुम्हें इनमें कुछ अनकही कहानियां नजर आएंगी। कभी गौर किया कि अम्मी के होंठ मुस्कुराते हुए कब कपा क्यों जाते हैं? कभी सोचा कि बहन दरवाजे तक क्यों नहीं आती? इसलिए कि कहीं उसके आंसू देखकर तुम्हारे हौसले छूट ना जाए। घर का हर फर्द लाख गमों के बावजूद खुशी खुशी तुम्हें रुखसत करता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी हिम्मत ना टूट जाए। वरना कोई भाई बहन है जो अपने भैया की जुदाई पर ना रोए? कौन बाप है जो अपने जिगर के टुकड़े की फुरकत पर हंस रहा हो? और दोस्तों, कौन सी माँ है जो लब पर तबस्सुम सजाए अपने प्यारे बेटे की जुदाई देखती रहे? बाखुदा इन सब पर हमारी जुदाई शाख है। अब्बू जी को मोहल्ले के जलील आदमी से गालियां खाने का शौक नहीं चुराता। वो हमारे लिए गालियां सुनते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए पसीने में डूबकर मेहनत करते हैं। मकतब के उस्ताद जी 2000 की तनख्वाह पर बरसों से टिके हुए हैं, सिर्फ इस तमन्ना में कि बस्ती का कोई बच्चा मेरी नज़रों के सामने आलम बनकर आ जाए और इस अमानत को संभाल ले। बाबा जी से पूरी बस्ती डरती है, मगर वो तुम्हारे सामने सिर्फ इसलिए झुके हुए हैं कि उनकी जन्नत का सवाल है। दोस्तों, आओ गिरेबान में मुंह डालकर सोचें कि क्या हम इस काबिल हैं कि किसी की जन्नत का सामान कर सकें? क्या हमारे पास एक सजदा भी ऐसा है जिसमें खुदा के सिवा किसी का ख्याल ना आया हो? जो माँ हमारे लिए 20वीं मर्तबा उठकर रोती है, क्या हमने पूरे साल में कभी एक मर्तबा भी उस प्यारी अम्मा के लिए हाथ उठाए? हम कैसे संग दिल बेटे हैं। माँ के नाम पर तो सारी दुनिया का दिल पिघल जाता है, मगर हम अपनी ख्वाहिशों में ऐसे मदहोश हैं कि माँ तक की कुर्बानियों का हमें एहसास ही नहीं। क्या एक मोबाइल की इतनी वक़्त है कि इसके पीछे इतने सारे लोगों की कुर्बानियाँ ज़ाया कर दी जाएं? क्या हमारी बेहुदा गपशप इतनी कीमती है कि हम किसी के अरमानों का खून कर दें? क्या मदरसे के आरजी दोस्तों की इतनी कदर है कि उनके लिए पढ़ाई छोड़कर अपनों की तमन्नाओं का जहां उजाड़ कर रख दें? कब तक बेमकसद जिंदगी जिएंगे? कब तक मदरसे में पड़े पड़े अपनी और दूसरों की जिंदगी जाया करेंगे? याद रखो दोस्तों, अगर आज हम किसी के अरमान का खून करते हैं तो कल को हमारे अजीज भी हमारे अरमानों का खून करेंगे। अगर आज हम किसी की कुर्बानियां रायगा किए बैठे हैं तो कल को हमारी कुर्बानियां भी रायगा जाएंगी। प्यारे भाइयों, उस अब्बू का वास्ता जो हमारे लिए जिल्लतें झील गया, उस अम्मा का वास्ता जिसका कोई पल हमारी याद के बगैर नहीं गुजरता, मकतब के उस शफीक उस्ताद का वास्ता जिनकी दुआएं हमारे नाम के बगैर पूरी नहीं होती। अपनी जिंदगी पर गौर करो। खुदारा वक्ती लज्जत के लिए दायमी जिल्लत का सौदा ना करो। दोस्तों, आओ आज मैं और आप मिलकर इरादा करते हैं कि अब के मदरसे की जिंदगी कुछ अलग जिंदगी होगी। अब के शबो रोज मकासद के साथ गुजरेंगे। अब महफिलों में और लगवियात में वक्त ज़ाया नहीं होगा। अब के उस्ताद के एहतराम में जरा बराबर कमी नहीं होगी। अब की ऐसी मेहनत होगी कि दूसरों को तरस आ जाएगा। इस मदरसे में हम अपने अल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए आएंगे। अब के रात को उठकर रूठे हुए प्यारे अल्लाह से माफी मांगेंगे। अब के नाफरमानी वाली जिंदगी के बजाय अतात वाली जिंदगी गुजारेंगे।